Young working journalists grow. Young working journalists grow. Baby, baby, git inshallah. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تم لیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ الیکشن لڑنے کا جب پروگرام بنا تو سب سے پہلے ہمارا رابطہ دکوٹا کے دوستوں سے ہوا، اور میں مشکور ہوں اپنے چھوٹے بھائی کا، مجھے استاد بھی کہتے ہیں، چودھری عبد الصمد کا، کہ انہوں نے کمال محبت کا مظاہرہ کیا، ہمیں یہاں لے کر آئے، اپنے گروپ کے عرفان اکرم صاحب، شعیب اشفاق صاحب، ان کو ساتھ ملایا اور اعلان کروایا، اور میاں خلیل عامر ایڈوکیٹ صاحب، ان کی تو ایک بات مجھے نہیں بولتی کہ بیٹھنا نہیں ہے، اور یقین کریں بھی یہ لفظ، ایک لفظ جو ہوتا ہے، جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت ایک نعرہ تھا، اب نہیں تو کبھی نہیں، اور وہی نعرہ جب چلا تو پاکستان وجود میں آ گیا تھا۔ اور یقین کریں کہ آپ کا یہ جو لفظ تھا وہ میرے اندر کھٹکتا تھا، ابھی انہوں نے یہ لفظ کیوں کہا ہے، میرے اندر خامی ہے تو انہوں نے کہا بیٹھنا نہیں ہے، اور کافی غور کیا اور مجھے سمجھ آیا کہ میں پچھلی دفعہ اگر نہ بیٹھتا تو آج یہ لفظ سننے کو نہ ملتا، اور میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے جگایا، تحریک دی، اور ساتھ ان کے عرفان محمود خان لنگا صاحب بھی ہیں، یہ بڑے مہربان ہیں، اور ایک ہستی ان کی غیبانہ ہے جو میرے بڑے بھائی ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے محبت کا اظہار کیا ہے، اور اس وقت سے میرا ان سے تعلق ہے جب میں میرے خواب میں بھی نہیں تھا میں نے صدر کے لیے الیکشن لڑنا ہے۔ اور یہ دکوٹا کے دوست ہی ایسے ہیں کہ ہمیں ان کی طرف سے کوئی فکر نہیں ہے۔ اب ہم یہاں بیٹھے تھے تو کوئی میسج آ رہا تھا، کوئی کال آ رہی تھی، یار اس کے پاس گئے بیٹھے ہیں، وہ اس کے پاس گئے بیٹھے ہیں، ابھی یہ عرفان شاہ صاحب کو دن میں آگے پیچھے کر لیا تھا، ہم نے باز یہاں پھر آئے ہیں، تو ادھر سے یقین کریں بھی آپ لوگ چٹان کی طرح کھڑے ہیں، ہمیں نہ کوئی فکر ہے نہ آپ کی طرف سے کوئی ایسی بات کی امید ہے، اور اس لیے وہ لوگ بھی میرے خیال میں آپ سے رابطے میں نہیں ہیں۔ چلیں بہرحال ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے، لیکن ہمیں آپ سے کوئی ایسی وہ خطرے والی بات نہیں ہے، ہمارے آپ مخلص دوست ہیں۔ تو اب کہہ رہے تھے بھی ان کے اجلاسوں میں، ان کی میٹنگوں میں جو باتیں ہو رہی ہیں تو یہ سب بکھلاہٹ کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ آپ اتنے بڑے عہدے پہ رہے ہیں، اتنے سال مسلط رہے ہیں، ہم نے بھی برداشت کیا ہے، تو ہم نے کیا گناہ کیا ہے؟ ہم نے ایک الیکشن کی بات کی ہے نا، تو الیکشن جمہوری حق ہے، اس کو پروسیس ہونے دیں، جو ہارے گا جو جیتے گا وہ آ جائے گا، سنبھال لے گا، اور ہماری تو یہ پہلی فتح ہے کہ ہم الیکشن کروا رہے ہیں۔ ان کے بے شمار رکاوٹوں کے باوجود انہوں نے ہمارے کئی ووٹروں کے ووٹ نہیں ڈالنے دیے، ووٹر لسٹ سے خارج کرائے، اور کافی مسائل کھڑے کیے، اس کے باوجود ہم ڈٹے رہے، اور آج الحمدللہ کہ الیکشن قریب ہے اور الیکشن کرانے جا رہے ہیں۔ پہلی فتح ہماری یہ ہے۔ دوسری فتح یہ ہے کہ ہم نے ان ممبران کے گھر کے دروازے دکھا دیے ہیں انہوں نے کبھی دیکھے بھی نہیں تھے۔ آج میلسی میں مجھے خود ایک بار کا کینڈیڈیٹ ملا، وہ کہہ رہا یار تیرا الیکشن چوا کھڑے تو ساڈا دبا بھی ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ ایسی روایت ڈال دی ہے، اب یہ الیکشن ہر سال ہر دوسرے سال ہوتے ہی رہیں گے، ہم ہوں گے نہیں ہوں گے، ہمارے دوست ہوں گے، لیکن ایک جمہوری ایک روایت چل پڑے گی، اور یہ جو بند کمروں میں فیصلے ہوتے تھے انشاءاللہ اب نہیں ہوں گے، اور نہ ہم یہ برداشت کریں گے نہ قبول کریں گے۔ ابھی میں پریس کلب میں گیا، وہ ہمارا ایک دوست انہوں نے اغوا کیا تھا، تو اس سلسلے میں تو وہ بتا رہے تھے الیکشن کمیٹی بھی، یار انہوں نے تو منشور ہی نہیں دیا ہمیں ابھی تک، آپ نے تو دے دیا پہلے دن۔ میں نے کہا ان کے پاس ہو تو دے، منشور کس بات کا دے؟ آج وہ لکھیں جی ہم صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے،
लोग कहते हैं 22 साल क्या किया है, आज कहते हैं जी हम सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये काम करेंगे। भाई पहले तुमने क्या किया है? हर बात पर हर जगह तो तुम्हें मुंह की खानी पड़ रही है, और फिर हमारे साफी दोस्तों के खिलाफ ये बात करते हो, इखलाकियात से गिर के बात करते हो, वे कुएं के मेंढक हैं, चापलूस हैं। ओ अल्लाह के बंदो, चापलूस तुम्हारे से ज्यादा कौन है? कोई भी नहीं। तुम्हारे ऊपर एक सियासी ग्रुप का ठप्पा लगा हुआ है, सारी दुनिया जानती है, कौन नहीं जानता? आप हमें कहते हैं चापलूस है, आप तो नहीं जानते? जो SHO है, DSP है, गुलदस्ता उठा के आप गए खड़े होते हैं। और हम आगे तो इंशाल्लाह सबसे पहले यही पाबंदी लगाएंगे, किसी की खुशामद नहीं करेंगे, किसी अफसर को पास नहीं जाएंगे। मुझे ये मलक साहब ने पर्ची लिख के दी थी भी आपने इसके अंदर रहना है। अब क्या करें, अंदर रह नहीं सकते, बातें हैं दिल की निकल जाती हैं दूर तक। ये अब हमारे वोटरों को हरासा कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीकों से। अच्छा, अब इलेक्शन लड़ने में 70-71 वोट हैं, तुम सहाफियों के घर जाओ, उनके पैर पकड़ो, उन्हें मिन्नत करो, मनाओ। ये कि एक सियासी डेरे पे बैठ के फोन करवा रहे हैं, पुलिस वालों से फोन करवा रहे हैं। कल मुझे पता लगा भी एक्साइज का एक जिले का अफसर है, उससे किसी को फोन करवाया है। तो अब ये हरबे तुम्हारी शिकस्त की निशानी है, आप अपनी शिकस्त देख चुके हैं। हम तो किसी को नहीं कह रहे, हम तो अपना पैगाम दे रहे हैं, सहाफियों को दे रहे हैं। उनके पास हमें 10 दफा भी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे, हमारा हक बनता है। हम ना किसी डेरे पे जाते हैं, ना किसी पुलिस वालों को कहते हैं, ना किसी अफसर को कहते हैं हमें वोट दें। वोट देंगे तो ये मेरे साफ ही देंगे। अगर आज भी हम सियासी डेरों पर चले जाएं तो फिर हमारे में और उनमें क्या फर्क रह गया है? और ऐसा नहीं होगा। ये हमारा मंशूर है, इस पे 2-3 बातें करनी है। अब उन्होंने तो मंशूर नहीं दिया, हमने दे दिया है। प्रेस कल नहीं, कोशिश करनी है इलेक्शन में। हाँ, ये भी मैंने सुना है भी अब वो चोर रास्ता भी इख्तियार कर रहे हैं, उन्होंने मशवरे करने शुरू कर दिए हैं। इसका स्टे कैसे लिया जाता है, स्टे ले लें या राय फरार इख्तियार कर लें। तो इनके अपने वो कुछ करिंदे हैं, वो भोंडी हरकतें कर रहे हैं, मुख्तलिफ पोस्टर लगाते हैं, गैर इखलाकी बातें लिखते हैं। और मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि हमने तो चौधरी समद को संभाल के रखा हुआ है, और जिस दिन हमने इसे खुली छूट दे दी तो एक ही ये काफी हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो उनको मैसेज हो जाना चाहिए भी इखलाकियात का दायरा ना छोड़े, जमहूरियत रवायात में चलते हुए अपने प्रोसेस मुकम्मल करें और किसी पे कीचड़ ना उछालें। ये हमने लिखा जी प्रेस क्लब के सहाफियों के लिए फलाही इदारा बनाना। इंशाल्लाह हमें अल्लाह ने मौका दिया, इज्जत दी, तो आप देखेंगे कि वहाँ सहाफियों के लिए बिल्कुल कोई फलाही इदारा कायम हो चुका है। सहाफी महसूस करेंगे कि वहाँ से हमें कोई ठंडी हवा आती है। प्राइवेट तालीमी इदारे मुफ्त तालीम का बंद हो, उसका हमने अमली तौर पर सबूत भी दे दिया है। मियाँ नदीम साहब ने ऐलान किया है कि मेरे कॉलेज में जो भी सहाफी का बच्चा आएगा उसको हम फ्री पढ़ाएंगे। सहाफियों के लिए सरकारी अस्पतालों के प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सो इंशाल्लाह। ये भी मियाँ साहब के भाई का एक प्राइवेट अस्पताल है, पूरा सेटअप है वहाँ। इन्होंने ये भी ऐलान किया है कि वहाँ हम फ्री इलाज की सहूलत देंगे सहाफियों के लिए, और इंशाल्लाह हम दूसरे जो अस्पताल है उनसे भी रब्ता करके वहाँ भी सहूलियात दिलाएंगे। बात वो आ जाती है, जैसे ये कारी खालिद साहब हैं, ये फरमा रहे थे भी ये चापलूसी करते हैं। इनकी बात बिल्कुल सही है। एक मुंशी की क्या औकात होती है, एक मुहर्रर ताइनात होता है, मुंशी ताइनात होता है, हमारा साहब ही जाके गुलदस्ते पेश कर रहा होता है, और ये सिस्टम हम ख़त्म कर देंगे। मुहर्रर क्या, वहाँ SHO या DSP भी होगा तो हम वहाँ जाके गुलदस्ता पेश नहीं करेंगे, वो हमारे प्रेस क्लब में आए, हम वेलकम करेंगे, उनकी इज्जत करेंगे। अच्छा, मुफ्त कानूनी इमदाद के लिए लीगल कमेटी, वो मियाँ खलील आमर साहब ने भी ऐलान किया था भी हाई कोर्ट की जितने होंगे केस, जिनकी बड़ा फन है, हाई कोर्ट की जो प्रैक्टिस होती है हमें पता है कितनी कास्टली होती है। और इसी तरह मेलसी में भी 3 हमारे दोस्त जो हैं सीनियर वकला हैं, उन पर मुश्तमिल कमेटी बनाएंगे और वहाँ भी दोस्तों को मुफ्त इमदाद दिलाएंगे। अब हमने लिखा है जी फंड कायम करके मुस्तहक सहाफियों की इमदाद करना। आज तक इन लोगों को तौफीक नहीं हुई भी हमारे प्रेस क्लब का अकाउंट ही खुलवा लिया जाए। कोई समझ नहीं आई पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है,
कोई जमा खर्च का रिकॉर्ड नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ने हमें मौका दिया तो फंडिंग और इसका बाकायदा एक रिकॉर्ड रखेंगे और उस फंड से हम अपने जो मुस्तहिक साफ़ी मौत फौत शादी खुशी गमी जो होगी उससे हम उनकी इमदाद करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये एक बात है, अभी 2 सालों का, 1 साल का तो होता था, फिर इन्होंने 2 साल का कर लिया टिनोर। 2 सालों में एक इजलास भी नहीं हुआ। हालांकि हमारे आइन में दर्ज है कि हर माह इजलास होगा जिसमें जो मामलात होंगे सहाफ़ियों के वो देखे जाएंगे। कोई नया मेंबर आएगा तो उसकी दरख्वास्त पर गौर किया जाएगा। अभी चौधरी समद साहब कह रहे थे भी हमारे सहाफ़ी दोस्तों में निकाला है, मैंने खुद कई दोस्तों के फार्म दिए हैं, फीसें जमा कराई हैं, उनके नाम भी नहीं डाले। वो इसलिए नहीं डाले गए भी ये उनके वोटर होंगे। और देखें 22 साल में सिर्फ 71 वोट बनाए हैं। आज अगर ये हमारे जो गिर्द दूसरे ग्रुप बने हुए हैं वो इन्हीं की वजह से बने हुए हैं। जब आप किसी का रास्ता रोकेंगे, किसी को मेंबरशिप से महरूम कर देंगे, उन्होंने कोई ना कोई तो ग्रुप बनाना है। वो इन्हीं की गलत पॉलिसियों की वजह से बने हुए हैं। इंशाल्लाह हम आ गए तो इसका भी हम दरवाजे खोल देंगे मेंबरशिप के, और पहले इजलास में जितने हमारे एसोसिएट मेंबर हैं सबको ओके कर देंगे, सब। अच्छा, अब कहा जाता है जी पहले तो किसी पे टाइम ना अल्लाह करे कोई आ जाए, कोई मुकदमा हो जाए, कोई केस हो जाए, वो जी महाराज वो साफ़ी फॉल्ट ही है जी, उसका फॉल्ट है जी। चौधरी समद तिखा बंदा है जी, उसने एसएचओ को ये कर दिया वो कर दिया, जो भी कर दिया। हमारा एक प्लेटफार्म है, उस वक्त तो आप साफ़ी की इमदाद करें, अपनी जगह पे आके उसका एहतसाब कर लें, उसे समझाएं, उससे कहें भी यार ऐसे नहीं ऐसे नहीं। अब वहीं कह दें नहीं यार वो उसका फॉल्ट है, अब हम उसके लिए क्या करें। ये रवायत भी हमने ख़त्म करनी है। हमारे दोस्त के साथ अल्लाह ना करे कोई ऐसा मामला हुआ तो हम उसके चट्टान की तरह खड़े हो जाए। अच्छा, इमारत देख लें जी, इमारत ऐसी है भाई, ना वहाँ फर्नीचर है, ना वहाँ कोई मैक है, ना डेस्क है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब देखें हमारा शोबा ऐसा है भी हर बंदा घर से तो सीख कर नहीं आता, उसके लिए वर्कशॉप्स होनी चाहिए, उसके लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम होने चाहिए। इंशाल्लाह हम प्रेस क्लब के अंदर ही सहाफ़ियों की ट्रेनिंग के लिए प्रोग्राम मुनक़द कराएंगे। और एक अरसे से अब हम तो रहे हैं भी वहाँ ग्रुप बंदी और तअस्सुब का बड़ा जोर है। यार आपने इसकी खबर लगानी है, उसकी नहीं लगानी, जनूब वाले सियासतदान की लगानी है, शुमाल वाले की नहीं लगानी। ये आते ही हमने ये बिल्कुल पॉलिसी बदल देनी है, सहाफत को आज़ाद कर देनी है। हमारे लिए सब सियासतदान बराबर हैं। जो प्रेस क्लब को इज्जत देगा इंशाल्लाह हम उससे बढ़ चढ़ कर इज्जत देंगे। और जितने इसके मामलात हिसाब किताब है इंशाल्लाह वो भी हम साफ शफाफ निज़ाम बनाएंगे। और अवाम के मसाइल, इनकी हमेशा जो सहाफत रही है वो अवाम के मसाइल के हल पर नहीं रही, वो सिर्फ बड़े लोगों की खुशामद चापलूसी, एक ही ग्रुप को मतलब बुलाइज करना वहाँ टिकी रही है या ज़ाती मफादात पर रही है। इंशाल्लाह हमारा फोकस जो होगा वो अवाम के मसाइल उजागर करने पर होगा। और प्रेस क्लब को इंशाल्लाह सियासी दबाव से आज़ाद कराएंगे, बिल्कुल आज़ाद होगा। हर सियासतदान, हर ताजिर, हर कम्यूनिटी के लोग हमारे लिए काबिल एहतराम हैं और इंशाल्लाह उनको बराबर इज्जत देंगे। और एक जो उनको अभी नज़र आ रहा है, अभी अगर ये अब यंग जर्नलिस्ट ग्रुप आ गया तो फिर हमारा बाबे तो हम चले गए हमेशा के लिए। और ये हम साबित भी कर देंगे कि आइंदा जो है वो हम नए नए नौजवानों को आगे लाएंगे, उनको जिम्मेदारी देंगे, वो अपनी सलाहियत मनवाएं, काम करें, सिस्टम को बेहतर करें। और इंशाल्लाह सहाफ़ियों के जितने भी इनफरादी मसाइल होंगे, इज्तिमाई मसाइल होंगे, वो बढ़ चढ़ कर इंशाल्लाह हल करने की कोशिश करेंगे। अब जो करंट सूरत हाल है वो यही है भाई, अब वो हर तरफ से बुखलाहट का शिकार हो चुके हैं। अब मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, एक सियासी डेरे में बैठकर फ़ोन करवा रहे हैं लोगों को, आपने इधर नहीं जाना, इधर जाना है, इसको वोट देना है, ये करना है, प्रेशराइज कर रहे हैं, किसी को किसी तरीके से ब्लैकमेल कर रहे हैं। और मैं ये सहाफ़ी अपने भाइयों को पैगाम देना चाहता हूँ, ये कुछ नहीं कर सकते। यकीन करें भी मेरी उम्र अब 50 साल के करीब हो गई है और मैं समझता हूँ कि जो मज़ा मुझे अब आ रहा है ना, ज़िंदगी का पहले आया ही नहीं है।
जो आज़ादी में मज़ा है वो कैद में नहीं है, वो गुलामी में नहीं है। Young working journalist group. Baby Mary Gift inshallah. वो कहते हैं, वो बड़े कहते हैं ना, भी बड़े दरख्त के नीचे छोटा दरख्त दबा रहता है। हमारे साथ भी यही होता रहा है। अगले दिन एक मुझे MNA लेवल का बंदा कान में कहता है यार तू तो बड़ा लीडर है। मैंने कही वो कैसे कह रहा, किताब तेरा सुना तूने धो दिया उन्हें। मैंने कहा जी लीडर तो नहीं है, मौका ही अब मिला है। तो ये जो मौका मिला है इसमें दकोटा के भाइयों का बहुत बड़ा रोल है। आपने यकीन करें हमें तहरीक दी है और आपने ही हौसला दिया है और हौसला ऐसे बढ़ता गया है, ऐसे काफिले से काफिला मिलता गया। आज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कि हम वाज़े जो है ना जीत के करीब पहुंच चुके हैं और उनको भी नज़र आ रहा है, इसलिए वो हरबों पे आगे हैं। लेकिन इंशाल्लाह हमारी नीयत साफ है, हमारा मिशन ठीक है और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हम कामयाब होंगे। आपसे यही गुजारिश है कि 18 तारीख को आप आएँ, अपना वोट कास्ट करें और हम जमहूरी तरीके से तब्दीली लाएंगे। निशान हमारा शाहीन है और शाहीन पर हम मोहर लगाएंगे इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी।